ہمارے دیار کے حالات سے انسانی زندگی کو پتہ چل جاتا ہے۔ دوستو، آج ایک سوال بہت عام اور آسان ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں یہ سوال ہمیشہ کھٹکتا رہتا ہے کہ یوم عاشوراء میں کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، انشاءاللہ اب تو یوم عاشوراء گزر چکا ہے، اب آئندہ کے لیے یوم عاشوراء کیسے منانا ہے، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو ذہن نشین کر کے ضرور رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے دیار میں یوم عاشوراء کے نام پر جو واویلا مچائے جاتے ہیں، ڈھول دھماکے کے ذریعے سے جو انسانیت کا ننگا ناچ نچایا جاتا ہے، اور دوستو نوجوان بچوں کے ذریعے سے جس طرح اسلام اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ یوم عاشوراء کا دن ایک مبارک دن ہے، اور یوم عاشوراء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ یوم عاشوراء تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی معتبر ہے۔ دوستو، آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی کے وصال ہو جانے کے بعد 60 سال بعد یہ مرحلہ پیش آیا، اور اس مرحلے سے پہلے اللہ کے نبی کے دور میں سیدنا امام حسین شہید کیے جائیں گے، سیدنا امام حسن شہید کیا جا چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ سارا کا سارا ماجرا انسانیت نے دیکھ چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ جبرائیل امین نے آ کر اللہ کے نبی سے جب فرمایا کہ حضور ان قریب ایک زمانہ آئے گا جب آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو دوستو وہ ٹائم میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ ام فضل پریشان ہو گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بے چینی کے عالم میں پڑ گئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہوا۔ اور یہ ساری باتیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تقریباً 50 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہیں۔ اور دوستو، رمضان کی فرضیت جو اسلام کے اندر رمضان ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، یہ سارے ایک ہی بار میں فرض نہیں ہوئے، بلکہ سب الگ الگ اعتبار سے فرض ہوئے۔ رمضان الگ اعتبار سے فرض ہوا، حج الگ اعتبار سے فرض ہوا، اور دوستو نمازوں کی فرضیت الگ اعتبار سے دی گئی۔ ایسا نہیں کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ ایک ہی بار میں کہہ دیا گیا کہ بھائی ساری چیزیں ایک ہی بار میں آپ کو تھوپ دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دوسرے پارے میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم وکبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اس آیت کریمہ کا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے سلسلے سے بیان فرمایا، جب شراب کی حرمت دنیا میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ دوستو ابھی شراب کی برائیاں چل رہی تھی، اللہ کے نبی کے جانثار صحابہ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم وکبیر۔ اللہ کے نبی سے آ کے فرمایا کہ حضور ہم آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں کیا برائیاں اور کیا منافع کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے حضور سے بتوایا کہ آپ بتا دو کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔
यानी मंशा यही था कि अभी शराब की हुर्मत अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल नहीं फरमाया। उसके बाद के अंदर शराब के बारे में 7वें जुज़ में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर। इस आयत करीमा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने शराब की हुर्मत नाजिल फरमाई। तो दोस्तों, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के 58 साल के 60 साल के बाद करबला का मैदान सजा, और शिम्र नामी आदमी जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नंगी तलवार लेकर आया, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया कि यही वो यहूदी है जो शायद मेरी गर्दन उड़ाना चाहते हैं। शहीद होने से पहले सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदाज़ा हो गया, इसलिए कि सैयदना इमाम हुसैन ने अपने नाना से सुना था कि मेरे नवासों को शहीद एक यहूदी आके करेंगे, और उसके बारे में सारी खूबियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर बताई। जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र पड़ी तो यकीन हो गया कि यही वो शिम्र है जिसके ज़रिए से शायद मुझे शहीद किया जाएगा। दोस्तों, आज मैं करबला का मैदान तो इंशाअल्लाह आपको लेके नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बात याद रखने की ज़रूर है कि 1200 खतूत सैयदना इमाम हुसैन को भेजे गए कि जनाब वाला आप इधर तशरीफ लेके आइए, आपकी ज़रूरत तो करबला की सरजमीन पर है। ये हमारे मुसलमानों की चालबाजियाँ हैं, और यही चालबाजी इंशाअल्लाह मैसूर की श्रीरंगा पटन का भी हवाला आज आपके सामने दिखाऊंगा कि जब मुसलमान वाला इस्लाम के लाइन से दोस्तों अपने आप को पीछे कर लेता है तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली, अपने ज़माने के सबसे बड़े कुतुब सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोगों, हिंदुस्तान के अंदर अपने ज़माने में हजरत शेर टेपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा उस टाइम कोई बड़ा वली हिंदुस्तान में नहीं था। इतना बड़ा वली हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1799 के अंदर कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब इंसान अपने जहनों के अंदर 900 मरबा मील ज़मीन का लालच बिठा लेता है, 700 मरबा मील ज़मीन का लालच इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, अपने ज़माने के वली को कत्ल करवाने वाले भी हमारे लोग होते हैं, अपने ज़माने के शेर को मरवाने वाले भी हमारे ही दामन से रंगे हुए लोग होते हैं। दोस्तों, इसी तरह का कारनामा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। 1200 खतूत लिखे गए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का मशगला लड़ाई और फितने का नहीं था, वो अमन और इस्लाम का गहवारा लेकर करबला की सरजमीन आए थे। इस्लाम और शांति का पैगाम लेकर करबला की सरजमीन पर वो आए थे। लड़ने का इरादा नहीं था, जंगो जिदाल का कोई इरादा नहीं था, कत्ल गारतगिरी का कोई मंशा नहीं था, बल्कि अपने नाना के दीन को उजागर करने, अपने नाना के दीन को दोस्तों सारी दुनिया को बताने के लिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर आए थे। उनको पता था कि उसी जगह पर मेरे वालिद को कत्ल किया गया, शहीद किया गया। सैयदना इमाम हुसैन को पता था कि उसी जगह पर मेरे बड़े भाई को शहीद किया गया और उसी जगह पर मुझे भी बुलाया जा रहा है, कोई न कोई बात ज़रूर होगी। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा हुसैन, उधर का रुख न कर, वहाँ की ज़मीन ने तुम्हारे बाप के साथ धोखा किया, वहाँ की ज़मीन ने तुम्हारे बड़े भाई के साथ धोखा किया, अगर तू उधर जाएगा तुम्हारे साथ भी धोखा का मामला किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ही मंशा था कि मैं नौजवानों की दिलों की धड़कनों को उभार कर रख दूँगा, क़यामत तक आने वाले नौजवानों को
उभारने की कोशिशें करूँगा कि नौजवानों, इस्लाम के लिए कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखना। अगर इस्लाम को जिंदा करना है, नौजवानों को आगे आना होगा। अगर इस्लाम को आला मकाम दिलवाना है, नौजवानों को शहादतें देनी पड़ेंगी। अगर इस्लाम को उभार कर दिखाना है, नौजवानों को कुर्बानी करके दिखाना होगा। खुदा की कसम, अगर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम दिया, वो आप जैसे हमारे जैसे नौजवानों को पैगाम देकर दुनिया के अंदर एक तारीख और एक बाब बनाकर पेश किया कि लोगों, चाहे इंसानी जिंदगी कुचल जाए, लेकिन नौजवानों, इस्लाम के खातिर अपनी जिंदगी को कभी पीछे मुड़ने नहीं देना। यही कारनामा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर गया। इसलिए जब आप पड़ाव डाले और पड़ाव डालकर आपने अभी करबला का मैदान नहीं सजा, सिर्फ पड़ाव डाला और इब्न ज़ियाद को पता चल गया। यजीद को तो यह भी पता नहीं था कि वो लड़ने के इरादे से आ रहा है। दोस्तों, यजीद ने, मैं आपको तारीख के हवाले से बताऊंगा कि शायद ये बातें आज आप लोगों ने सुना नहीं होगा। हमने भी अपने उस्ताद मोहतरम से ये सवाल पढ़ाई के दौरान किया था कि जनाब, यजीद को बुरा भला कहना चाहिए या नहीं चाहिए? एक सवाल है ना आज हम लोगों के ज़हनों में। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम हैं, अपने ज़माने के बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। किबार उलमा में, यानी बड़े आलिमों के लिस्टों में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम शुमार किया जाता है। इमाम गजाली से किसी ने जाके पूछा, ए इमाम गजाली, क्या यजीद को हम गाली दे सकते हैं? इमाम गजाली ने कहा, नहीं नहीं, आप गाली नहीं दे सकते, इसलिए कि वह अमीर मुआविया का बेटा है। आप तमाम उलमाए किराम से, जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, उनसे आप मसला पूछ के देखो कि क्या आप यजीद को गाली दे सकते हैं? यकीनन गुनाहों का साथ देने वाला गुनाहगार होता है, कत्ल का साथ देने वाला वो भी कातिल शुमार किया जाता है। दोस्तों, लड़ाई में शामिल होने वाला अगरचे वो ना गया हो, अगर उनके इशारे पर गया हो तो वो भी मुजरिम शुमार किया जाता है। यजीद की गलती यही थी कि उन्होंने जाके कहा कि हुसैन से पूछ के आओ क्या इरादे से आए हो। इब्न ज़ियाद को भेजा, वहां पर एक टोला तैयार हो गया, जिस टोला का नाम अब्दुल्ला इब्न सबाई टोला है। यही वो असल कातिल और मुजरिम टोला है जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और उनकी पूरी फैमिली और परिवार को शहीद किया। 72 आदमियों का जो गिरोह लेकर आप एक अमन का पैगाम देने के लिए आए थे, दोस्तों 72 लोगों को शहीद किया गया। शहीद करने वालों का नाम अब्दुल्ला इब्न सबाई टोला है। इस गिरोह का नाम याद रखिएगा, यह गिरोह है अब्दुल्ला इब्न सबा। एक कौम का नाम था, एक फिरके का नाम था, एक जमात का नाम था, जिनका मंशा यही था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन हम दुनिया के अंदर आम होने नहीं देंगे। जिनका मंशा यही था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन दुनिया के अंदर गालिब आने नहीं देंगे।